Good morning, all of you. Some basic concepts of chemistry, the chapter number 1, in which the today is our topic. What we are going to do the today, that is scientific notation. Okay, scientific notation, which is very much important part. वो बहुत important है. Okay, to solve out the sums or MCQ, you can call it, even for बोर्ड, फॉर गुचकेट, फॉर जीनीट. ओके, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आपके कुछ भी डाउट्स हो तो डाउट्स को हम लास्ट में भी लेंगे. ओके, when the lecture is ongoing, if you have any doubts you can note it down and then you can ask me the doubts at the last. Okay, so that I can clear it. So first of all, the scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले हम एक चीज की बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी. ओके, अचौकसता, अनसर्टेनिटी विच इज कॉल्ड एज अचौकसता. सो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. ओके, सो व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग, अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो, ओके, whenever you are measuring anything, okay, any physical parameter, if you are measuring, कोई भी फिजिकल पैरामीटर अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो when you are measuring anything at that time, while measuring, because of a person, suppose I am a person who used to do the measurement of a distance from one place to the other place, okay, by my vehicle, suppose. Okay, so at that time, in while measuring from my side, when मैं measure कर रहा हूं तो उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है. Okay, some problem if it is there, or in a measurement, okay, it is not in a perfect manner from the my side. Okay, so which is considered to be the uncertainty. Okay, uncertainty, once again, what does it means? मैंने कोई भी चीज को measure किया, okay, and I used to give that, suppose it is a 5 kilometer. Okay, but then based on the certain instrument and device, if I used to measure, okay, कोई डिवाइस की मदद से मैं उसको अगर मेजर करता तो सपोज 5.2 किलोमीटर आ रहा है. ओके, out of you, suppose somebody is there, say for example, out of you people, Devanshi is there. Okay, if she is measuring, okay, the same distance, okay, but then if she got the answer that is 4.8 kilometer, so it is possible. Okay, ऐसा हो सकता है. So generally what we used to do it on an average, I can say that it is a 5 kilometers. Somebody else, Jainis is measuring, suppose, okay, then he would say that it is 5.3 kilometer. Okay, कोई और बंदा अगर measure कर रहा है, okay, तो वो कुछ और बोल रहा है. So in generally, if ये सभी का एडिशन करके on an average I can say that it is a 5 kilometer. The distance between the place from A to B, A से B का जो place, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नियर अबाउट 5 किलोमीटर. सो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनसर्टेनिटी. ओके, मैनी अ टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा. हमें एक्सपेरिमेंटल, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं भाई, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट उठा लो तो उसमें आप जब एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें जब आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो तो यू हैव टू डील विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा, और वी हैव टू डील विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा. उसमें से जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर हमें काम करना होता है. ओके, उसके साथ में हमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है. ओके, some calculation we need to do it, whether it is addition, multiplication, division और कुछ भी हो, ठीक है, but some sort of the calculation we have to do it. Okay, with this experimental data, जो भी डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशन लगाना पड़ता है. So there are meaningful ways to handle the numbers conventionally and present the data realistically with certainly to the extent possible. तो जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें हैंडल करना है. उसमें हमें कन्वेंशनली एज वेल एज द प्रेजेंट रियलिस्टिक मैनर,
यानी पास्ट में वो डेटा के ऊपर क्या काम हुआ है, ठीक है, वो भी हमें ध्यान में रखना है, और रियल मैनर में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वो डेटा के साथ, ठीक है, वो सभी चीज हमें माइंड में रखनी है, एंड देन वी हैव टू डील इट. ओके, these ideas are discussed below in the detail. Okay. सबसे पहला आइडिया हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, जो कि आज का टाइटल है मेरा, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन. ओके, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. साइंटिफिकली आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है. मैथमेटिक्स में कभी कभी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मेरे पास 5 पॉइंट सुनना सब लोग. ओके, सपोज आई एम हैविंग वन डेटा. मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि 5.9 5.986 5.986. ओके, अभी पॉइंट के बाद, मैथ्स में ज्यादातर क्या करते थे, आफ्टर पॉइंट्स यू विल सी 3 डिजिट. इसमें थर्ड डिजिट आप चेक करोगे तो थर्ड डिजिट 5.986, थर्ड डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो आगे वाले डिजिट में एक नंबर हमें ऐड कर देना है. तो 5.986 से थर्ड डिजिट 6, मतलब कि 5 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हम 5.98 के बदले 5.99 लिख लेंगे, ठीक है. सो दिस इज कंसिडर्ड, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड. ओके, इसके कुछ रूल्स है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर डिस्कस्ड करने हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक, दैट इज अ साइंटिफिक नोटेशन. ओके, yes, so as a chemistry is the study of atoms and molecules, that we are aware. At the starting only in the first session I have said you, okay, which have extremely low masses and are present in extremely large numbers. उनके मास बहुत, देखो अब एक तो ये चीज दिखती नहीं है भाई, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल और आयन, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, बाय नेकेड आईज वी कैन नॉट सी इट, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता चलता है, एक तो ये दिखते नहीं है हमें, ठीक है, मतलब कि उनका जो मास है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली लो. ओके, है बहुत कम पर बहुत बड़ा नंबर है. A chemist has to deal with the numbers as large as, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 602200, once again 000, 3 more 0, 3 more 0, 3 more 0, 3 more 0 and 3 more 0. Means it's a huge number, बहुत बड़ा नंबर है. ओके, मे बी ट्रिलियन बिलियन से भी कुछ ज्यादा. ओके, सो व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस नंबर, तो आपको इतना बहुत बड़ा नंबर लिखने में दिक्कतें आएंगी, जीरो काउंट करना पड़ेगा. ओके, कितने जीरो से, और उसमें एक आध जीरो अगर हम भूल जाए, मेरे जैसे आंख का कुछ दिक्कत है किसी को, ठीक है, तो वो जीरो काउंट करने में कोई दिक्कत आ जाए, मिस्टेक हो जाए, तो पूरा कंप्लीटली कैलकुलेशन जो है उसमें मिस्टेक आ जाएगा. तो ये लार्ज है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स. जैसे कि एक और एग्जांपल है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और एज स्मॉल एज 0 पॉइंट, अभी इसमें बहुत ज्यादा जीरो है, ठीक है, आपको वक्त मिले तो आप काउंट कर लेना. एंड देन आफ्टर दैट एट द लास्ट 166 ग्राम मास ऑफ द hydrogen atom, it is written. This is just for the example, one very large number I have taken and one very small number I have taken. Okay, so now how to deal with these numbers, ऐसे नंबर के साथ बच्चों हम कैसे डील करें, ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है. सो सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एज, कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट तो बच्चों आपको पता भी होगा, ठीक है, the value of speed of light, v, velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that is called as a 3 lakh kilometer per second. Okay, then charges on particles, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, ठीक है. सो ये कुछ देखो, ये अभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, घबरा नहीं जाना है, ठीक है, कि सर ये क्या ब्ला ब्ला बोल रहे हैं, ठीक है,
कुछ अभी कोई दिक्कत नहीं इसमें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस। तो ऐसे जो नंबर्स है, ओके, तो उनको कुछ बहुत बड़े नंबर होते हैं, कुछ बहुत छोटे नंबर होते हैं, उनके साथ हमें डील करना है। ठीक है, उनके साथ डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी कौन सी है? दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। ओके, सो it may look funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros. मैं आपको बोलूं जो प्रीवियस स्लाइड थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करे भाई, उसकी बात तो पहले बाद है, और उसके पहले हमें क्या करना है, उसमें कितने जीरो है वो काउंट करो। ठीक है, आगे पीछे जो भी जितने ही जीरो है, ठीक है, बड़ा नंबर हो तो पीछे है कि आगे है, जो भी हो, और इतने जीरोस को काउंट करो। तो आपको ऐसा लगे सर पगला गए, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, we need to count it, and but we don't have to write all this, we need to simplify these based on the scientific notation, and we have to represent it in a mathematical operation. ओके, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है विद सच नंबर्स। ऐसे नंबर्स के साथ हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर इट इज दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें हमें करनी है। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम है हमारे पास बच्चों। ठीक है, तो उसको डील करने के लिए बुक में बहुत बढ़िया टॉपिक दिया है, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है विल बी सॉल्विंग बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको बच्चों। ठीक है, वन एग्जांपल दे हैव गिवन, ये रहा देखो। ठीक है, you can see that n multiplied by 10 raised to power n, ये पावर है, ये यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, there is a typing error, okay, 10 raised to power n। तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, जो भी ऐसे बहुत बड़े नंबर हो या फिर छोटे नंबर हो, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power n स्मॉल n। यहाँ पे वेयर स्मॉल n इज द एक्सपोनेंट, स्मॉल n क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंट हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, एंड कैपिटल N जो है वो कोई भी डिजिट या कोई भी टर्म हो सकता है। ठीक है, विच वेराइज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। ये कुछ भी हो सकता है भाई, कैपिटल एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मे बी 1 to 9 10, कोई भी डिजिट हो सकता है। ओके, वेर स्मॉल एन जो है वो पावर में रहेगा, वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द अप्रोच, ओके, टू रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल नंबर टू वेरी बिग नंबर। what is the way? That is the way is the exponential form. Okay, this both the numbers, whether it is a small number or whether it is a bigger number, will be represented in form of exponential form. Okay, देखो अभी बहुत ज्यादा अटेंशन यहाँ पे रखना है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है? देखो, वी कैन राइट 232.508। हमारे पास एक नंबर है 232.508, 232.508। ठीक है, तो इसको कैसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है? तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे है? देखो, द पॉइंट वेर इट इज, दैट इज 232.5, 2 और 5 के बीच में पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट को रूल ऐसा है कि उसको घुमा के 1 पॉइंट में ही आपको आंसर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आपको ओनली इन 1 पॉइंट इट शुड बी रिटन। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट को घुमाओ, वेयर पॉइंट इज बिटवीन दी 232.5, 2 और 5 के बीच में पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट को हमें घुमाना है इस तरफ। देखो ये रहा, एक बार यहाँ पे पॉइंट आए 1 टाइम,
फिर ये यहाँ पे पॉइंट आए तो 2 बार घुमाना पड़ेगा, ट्वाइस। ओके, वी नीड टू ट्विस्ट इट ट्वाइस, 2 बार आपको घुमाना पड़ेगा बच्चों। तो आप लिख सकोगे 2.32, ओके 508। तो फिर ये 2 बार घुमाया, उसका क्या हुआ सर? तो 2 बार घुमाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड घुमाया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड घुमाया है। तो आपको देखो एक चीज यहाँ पे घुसा देनी है माइंड में, व्हेन यू आर मूविंग द पॉइंट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर आपका जो आएगा 10 पावर जो आएगा, ठीक है, 2 बार घुमाया है, ठीक है, वी हैव ट्विस्टेड ट्वाइस, पॉइंट को आपने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहे हो, ठीक है। सो व्हेन यू आर मूविंग द पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड उसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जब लेफ्ट में घुमा रहे हो तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि 10 आपका जो पावर आने वाला है उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा बच्चों। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ओके, सो आई कैन राइट दैट 2.32508 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये 102 नहीं है, ओके, 102 नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 10 ओके, 10 है, ओके। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दी एनी नंबर्स इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। वंस अगेन क्या किया मैंने, एक बार फिर से बहुत क्लियर लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, ओके, दैट इज 232.508, 508 है हमारे पास, ठीक है। लीगली साइंटिफिकली जब मैं इसको रिप्रेजेंट करना हूं, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, 2 पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग आंसर मुझे लिखना है। तो उसके लिए पॉइंट को मुझे घुमाना पड़ेगा भाई। सो व्हेन आई एम मूविंग द पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, मैं जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पे जाना है मुझे? लेफ्ट हैंड साइड में। पॉइंट को मुझे लेफ्ट साइड घुमाना है, ओके। तो लेफ्ट साइड जब मैं पॉइंट घुमा रहा हूं तो जो पावर आएगा मेरा 10 ठीक है, जितनी बार घुमाया, कितनी बार घुमाया, एक और 2 बार, 2 बार मैंने घुमाया, ठीक है। सो ट्वाइस आई हैव रोटेटेड, ट्विस्टेड, तो 2 बार मैंने जो घुमाया, इसीलिए पावर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। पर ये पावर का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे बच्चों को दिक्कतें होती है भाई। तो पावर का साइन जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट की ओर घूम रहे हो, ओके। इसलिए देखो फिर से, एक बार पॉइंट यहाँ पे लाओगे और यहाँ पे लाओगे, 2 बार घूमे तो पावर हमें 2 लिखना है, पर उसकी साइन कैसे लिखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसके लिए रूल क्या है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट घूम रहे हो, ठीक है, आप इस तरफ घूम रहे हो, ओके। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इस तरह, इस तरफ, इस साइड से देखो, इस साइड से आप इस साइड और जा रहे हो, ये साइड, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो पावर पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही वन मोर एग्जांपल वी हैव टेकन, एक और एग्जांपल लिया है, दैट इज 0.00016 कैन बी रिटन एज, हमारे पास क्या है बच्चों, 0.00016, ठीक है, 0.00016, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट इज बिटवीन 0.0, शुरुआत में ही पॉइंट दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 0 पॉइंट आप आंसर नहीं लिख सकते हो भाई, आपको 1 पॉइंट समथिंग आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट को हम घुमा रहे हैं, देखो, ठीक है, पॉइंट को हमें घुमाना है, कितनी बार घुमाएंगे, देखो, पॉइंट यहाँ पे है 0 पॉइंट, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 और 6 के बीच में पॉइंट आए तो उसको हमें 4 बार किस तरफ घुमाना है, किस तरफ घुमाना है, तो क्या भाई, राइट हैंड साइड, ठीक है। आप पॉइंट को राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर रहे हो,
ठीक है, पॉइंट को आप राइट हैंड साइड इस तरफ जा रहे हो भाई, इस और मैंने अभी बोला लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हो तो पावर पॉजिटिव में आना चाहिए भाई। ठीक है, कितनी बार घुमाया, 4 बार घुमाया, 4 बार पर किस तरफ, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड गए तो पावर नेगेटिव में आएगा बच्चों, तो 1.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रख लो बच्चों, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग, देखो बहुत याद रख लो। ओके, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड घूम रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो पावर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो पावर आपका नेगेटिव आएगा। ये घुसा दो, माइंड में घुसा लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। ठीक है, आज भी बच्चे कैलकुलेशन में इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, 12th के बच्चे भी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, वो सोचते हैं, 2-3 बार सोचते हैं कि पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव लगाना है। तो एक ही फंडामेंटल है इसका। ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग टू लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, ठीक है, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहे हो, ठीक है, तो पावर जो है, ठीक है, वो आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और व्हेन यू आर मूविंग टू राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड घूम रहे हो आप, ठीक है, इस तरफ, तो पॉइंट को राइट हैंड साइड घुमा रहे हो आप। ठीक है, तो पॉइंट को आप राइट हैंड साइड घुमा रहे हो तो आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड घूमेगा, तो पावर आपका 10 टू पावर जो आप लिख रहे हो, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी द क्लियर। ओके, आफ्टर दैट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसे डिजिट्स का, साइंटिफिक डिजिट का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी करते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आने वाली है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारा 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 6.9 इंटू 10⁸ ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, ऊपर फर्स्ट वन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को आता होगा, बहुत इजी है, मैथमेटिक्स में भी किया होगा बच्चों आपने। तो सबसे पहले पॉइंट वाले डिजिट कौन से, 5.6 एंड 6.9 दोनों को साथ में रख दो भाई। ठीक है, 5.6 एंड 6.9 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, साथ में नजदीक लेके आओ। ठीक है, दोनों को नजदीक लेके आओ सबसे पहले, तो ये रहे देखो, दिस वन, दोनों को नजदीक लेके आए। ठीक है, फिर बात हमें क्या करनी है भाई, उसके बाद देखो पावर 10⁸ और पावर, दूसरा पावर है 10⁵। ओके, 10⁵ एंड 10⁸। ठीक है, ये दोनों, उन दोनों के बेसिस मैथमेटिक्स में 8th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, दोनों के बेस सेम है। ठीक है, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है। ठीक है, तो पावर ऑफ एडिशन, पावर का एडिशन करना है भाई। ओके, सो पावर का एडिशन करना है 10⁵, देखो यहाँ पे 10⁵ प्लस 8। ठीक है, 10 अभी देखो 5.6 इंटू 6.9 कर दो। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम टू सेम यहाँ पे रखा गया है, देखो 10⁵ प्लस 8 कर दो, आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, 5.6 इंटू 6.9। ठीक है, अगर ये भी डायरेक्टली आपको पता ना चले तो आप 56 इंटू 69 कर दो भाई, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3864। 6.9 के बदले आप 69 मल्टीप्लाइड बाय 56 कर दो, तो उसका आंसर आपको 3864 आएगा। दो डिजिट के बाद पॉइंट रख दो भाई, बहुत सिंपल, 10⁻13 वैसा का वैसा। पर ये आंसर हम नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, साइंटिफिकली नोटेशन में करना पड़ेगा। पॉइंट कहाँ पे है, 8 और 6 के बीच में, तो वो पॉइंट नहीं चलेगा भाई, 3 पॉइंट समथिंग लेके आना पड़ेगा, 3 और 8 के बीच में पॉइंट। तो पॉइंट को आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है, लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है पॉइंट जो है। ठीक है, आप वो देखो 8 और 6 के बीच में से हम 3.8 लेके आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो पावर को ऐड करना पड़ेगा, 13 पावर ऑलरेडी है। ठीक है, 13 पावर इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसमें +1 डाल दो, तो 14 एक बार घुमाया इसलिए 1 है भाई, मेरा घर का 1 नहीं है। ठीक है, वंस आई हैव ट्विस्टेड, पॉइंट को मैंने एक बार लेफ्ट हैंड साइड घुमाया, इसलिए मुझे एक पावर ऐड करना पड़ेगा, तो वो आंसर हो जाएगा मेरे पास 14। सो 3.864 10⁻14 इज द आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन इज 9.8 into 10 raised to minus 2, okay, multiplied by 2.5 into 10 raised to minus 6. तो हमारी अभी बात हुई, दोनों को साथ में लिखो भाई, पॉइंट वाले को 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 पावर 10 रेज़ टू माइनस 2। देखो पावर का करना एडिशन है भाई, 10 रेज़ टू माइनस 2 प्लस माइनस 6, अभी बीच में प्लस है भाई, पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मैथमेटिक्स। सो माइनस 2 माइनस 6, तो 6 और 2 दोनों का सिग्नेचर साइन कैसा है, माइनस माइनस, तो करो एडिशन। ओके, दोनों का साइन देखो, सिमिलर साइन एडिशन, पावर में सिमिलर साइन हो तो एडिशन, फिर वो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, -2 एंड -6, ठीक है। सो -2 एंड -6, 6 और 2 8 हो गए, माइनस की साइन आएगी -8, ठीक है। पर 24 पॉइंट, फिर 98 मल्टीप्लाइड बाई 25 कर दो, दो पॉइंट के बीच में, दो डिजिट के बीच में पॉइंट रख दो, तो वो हो जाएगा 24.50 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू -8, ठीक है। पर ये आंसर नहीं चलेगा भाई, क्यों? बिकॉज एक पॉइंट के बाद आंसर लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहे, लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहे, ठीक है, एक बार घुमा रहे, ठीक है। तो +1 +1 -8 +1, ठीक है, -8 +1, तो 8 में से 1 निकालना पड़ेगा, तो आंसर आएगा -7, ठीक है। तो ये एक चीज भी आपको माइंड में घुसा देनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, आफ्टर दैट डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन में क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा आपके डिस्प्ले के ऊपर, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू -3 अपॉन 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो पहले पॉइंट वालों का डिवीजन करो भाई, 2.7 डिवाइड बाय 5.5, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, ठीक है। और 10 रेज़ टू पावर 4 जो है यहाँ पे, उसका सिग्नेचर पावर में कैसा है, पॉजिटिव है, वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो 10 रेज़ टू, ये तो ऑलरेडी -3, ये -3 है ऑलरेडी, ठीक है। ये प्लस है पर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव हो जाएगा, सो -3 -4, तो ये -7 दोनों का एडिशन कर दो, तो ये -7 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। 2.7 डिवाइड बाय 5.5 कर दो, 0.4909 मिल जाएगा, ठीक है। पर ये आंसर नहीं चलेगा भाई, डिजिट पकड़ो, 0 नहीं चलेगा भाई, कोई भी 1 to 9 में से कोई भी नंबर पकड़ो, उसके बाद में पॉइंट रखना है। तो एक पॉइंट आप देखो कहां से घुमा रहे हो, ये यहाँ पे देखो 0 and 4, वहां से एक पॉइंट ट्विस्ट कर देना है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जा रहे हो आप, ठीक है। तो -7 उसके राइट हैंड साइड जा रहे हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर आ रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड आप जा रहे हो, ठीक है, तो नेगेटिव पावर आएगा, एक बार तो -1 होगा भाई, तो -7 और -1 दोनों को ऐड कर दो भाई, तो -8, यानी कि 4.909 वुड बी द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी केमिस्ट्री, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ओके, इट लुक लाइक अ मैथमेटिक्स, ठीक है। Then addition and subtraction. So for these two operations, first the numbers are written in this such a way that they have the same exponent. After that the coefficient जो है digit terms are added and subtracted. तो उसके पास हमारे पास उसके दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला देखो, एडिंग 6.65 into 10 raised to 4 and 8.95 into 10 raised to 3। तो उसके लिए हमें क्या एडिशन करना है भाई इसका, तो एडिशन करने के लिए 6.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4, बीच में साइन रख दो, प्लस 0.895 इंटू 10 रेज़ टू 4। देखो हमने क्या किया, एक की जगह पे 10 रेज़ टू पावर 4 है, दूसरी जगह पे 10 रेज़ टू पावर 3 है, तो या 4 वाले को आप 3 में कन्वर्ट कर दो या 3 वाले को 4 में कन्वर्ट करो भाई। तो हमने क्या किया, 8.95 जो है उसका एक पॉइंट ट्विस्ट कर लिया भाई, 0.895, और 10 रेज़ टू 3 को मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पावर दोनों के कॉमन हो गए, तो 10 रेज़ टू 4 कॉमन ले लो, 6.65 प्लस 0.895 कर दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7.545, और 10 रेज़ टू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना है तो यही काम करो भाई, ठीक है। पहले कॉमन के लिए पावर को कॉमन बना दो भाई, एक जैसा, ठीक है। सो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू -2 माइनस 4.8 इंटू 10 रेज़ टू -3 है हमारे पास,
ठीक है। तो इसका सब्ट्रैक्शन हमें करना है, तो इसके लिए सबसे पहले पावर को सिमिलर बनाओ, -2 को -3 बना दो या फिर -3 को -2 बना दो। तो हमने यहाँ पे -3 को -2 में कन्वर्ट किया है, तो एक पॉइंट आपको लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है, तो 4.8 का 0.48 हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 10⁻²- माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। ठीक है, 2.5 में से 0.48 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 10⁻² कॉमन हो जाएंगे दोनों में से। ठीक है, तो 2.5 में से 0.48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.02 मिलेगा। सो 2.02 इंटू 10⁻² वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, जो आप डमास बोलते हो, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यही चीज पर किया हमने वही है, पर हमने साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से ये सब काम किया है। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, नॉट ओनली इन द केमिस्ट्री बट इन ऑल द सब्जेक्ट। यही चीज आपको फिजिक्स में भी काम में आएगी भाई, और ये सेम टू सेम थिंग आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे या फिर पढ़ गए होंगे पहला चैप्टर में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।